Twameva mata cha pita twameva. Twameva bandhu cha sakha twameva. Twameva vidya dravinam twameva. Twameva sarvam mama deva deva. From the time immemorial, educationists, mentors, teachers, and tutors worldwide have held an important position in the society. Our connection with the Almighty, our theory of knowledge, and our respect for our teachers, everything has stemmed from a benign force. This force is our ultimate guru, and this force is called a parent. Ladies and gentlemen, today on the very pious occasion of National Parents' Day, I, Dr. Niyati Chitkara, humbly welcome you all to this extremely special online session, which celebrates the unmatched role and significance of the wonderful parents. The Indian cultural heritage has always been looked up to for the righteous values and beliefs, wherein parents and teachers have been considered to be symbolic of God. Every mantra or shloka known to us Indians has in fact continued to reverberate the greatness of our mentors and exhibit their significance, especially in raising children. Notably, different religions across the globe share the same set of principles and teach us similar virtues. But what remains extremely crucial for the young generation to adopt these virtues is the general practice of parenting. Today, I'm extremely delighted to say that we have amongst us a highly distinguished personality who is known for his unparalleled intellect and distinct perspective. He is someone who is just the right person to help us assimilate the various values that are fundamental for a great parenting, and he is none other than former Chief Justice of India, Justice Ramesh Chandra Lahoti. We welcome you, sir. We're honored. Thank you. Hailing from Soyer region of India, Madhya Pradesh, Justice Lahoti has dutifully served the nation as its 35th Chief Justice. He has been noted jurist and an eminent member of the Indian judiciary system. Besides serving one of the longest terms as Chief Justice, his lordship has made memorable contributions towards strengthening Indian judiciary and upholding the sanctity of the same during the course of his remarkable career. He is particularly noted for upholding the Haryana law and revoking the Illegal Migrants Act. He has time again proved his mettle and dedication towards country's betterment and the edification of its men and women. Sir, I'm immensely happy that we are getting to speak to you on such special occasion where we are celebrating the parenthood. I'm sure everybody in the audience is brimming with curiosity, and therefore, I would now request you to kindly share with us your ideas and thoughts regarding various parenting techniques that you feel are a must for ensuring overall development of the students. Over to you, sir. Thank you, Dr. Niyati Chitkara. I am beholden to you and to all the parents who have been kind enough to spare time to listen to me. To all the parents who are present, who are participating and listening to me, I offer them my pranam with the same feeling with which I offer my pranam to my own parents. The very fact that in these times, the parents have collected together, I won't say to learn, to refresh, to revitalize their art of parenting, pleases me, makes me feel happy. Just by way of introduction and by way of certain preliminary observations, basic observations to begin with, I would like to remind all my audience of 3-4 points. First, as Dr. Niyati Chitkara has rightly said, that we are celebrating the Parents' Day. In fact, in our Indian society, which follows rich Hindu traditions and culture, there is hardly any need to celebrate a Parents' Day because 365 days in a year is a Parents' Day for us. There is nothing special that we do on a Parents' Day.
2. Today is Tulsi Jayanti. Goswami Tulsidas, who is the author of the most celebrated and the largest book, the Kavya of the world, Ramcharitmanas, उनकी आज जयंती है, तुलसी जयंती है आज. And when we talk about parenting, I think there is no other book better in the world which gives us practical tips of parenting as the Ramcharitmanas does. A few days before, the Vice Chancellor of Chitkara University, Dr. Archana Mantri, was speaking on family values as drawn from Ramcharitmanas. Ramcharitmanas goes to the extent of saying the art of parenting, the code of conduct for the parents, right from the time the sun rises till the time the sun sinks and the moon rises. Total code of conduct has been laid down in Ramcharitmanas in very many details. And therefore, not to talk of Parents' Day, if we want to discuss a topic like parenting as an art, I think there cannot be a better day than Tulsi Jayanti. Well, sometimes on the lighter side, I think Dr. Niyati Chitkara has something to do with it. My dear audience, have you ever tried, well, Shakespeare said, what is there in a name? I said there is too much in a name. Niyati in Hindi means bhagya. Niyati in Hindi means saubhagya. And therefore, when Dr. Niyati plans anything, that means there is something good in the offing. हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य प्रकट होने वाला है, ऐसी अनुभूति होती है. और इसीलिए आज का दिन डॉक्टर नियति चित्कारा ने पेरेंटिंग एज एन आर्ट की चर्चा के लिए चुना. मैं सभी माता पिताओं को, चूंकि आज का दिन है, अपनी मंगल कामनाएं देता और उनसे आग्रह करता हूं कि यदि आप सचमुच आर्ट ऑफ पेरेंटिंग प्लेइंग लाइव यदि आप देखना चाहते हैं, सुनना और सीखना नहीं, देखना चाहते हैं, तो रामचरितमानस पढ़िए और अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि रामचरितमानस अवश्य पढ़ें. I tried to find out this art of parenting is such a neglected subject. There are very few books written on art of parenting. And none of them is a bestseller. None of them. Very few books. Secondly, I think that art of parenting, discussing the art of parenting is our obligation. Why? Our children are our future. If we are learning the parenting as an art, we are simply planning, devising our own future. We are casting our own future. हमारे बच्चे हमारा भविष्य है. जैसा हम अपने बच्चों को बनाएंगे, वैसी ही दुनिया में हमको जाना पड़ेगा. एक very learned person says, आप अपने बच्चे को अंगुली पकड़ करके मंदिर ले जाइए. ये बच्चा जब बड़ा होगा, आप वृद्ध होंगे, तो जिस बच्चे की अंगुली पकड़कर आप प्रतिदिन उसे मंदिर ले जाते थे, वो आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ यात्रा कराने ले जाएगा. ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का ये लाभ हमको है. और एक अंतिम बात कहूं, और इस बात पर थोड़ा आप गंभीरता से विचार कीजिए. देखिए, पेरेंटिंग बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है और ये बच्चों का अधिकार है कि उनके माता पिता एक आदर्श माता पिता के रूप में उनके साथ व्यवहार करें. क्यों? इसलिए
माता पिता को अपना बच्चा चुनने का अधिकार है, पर किसी बच्चे को अपना माता पिता चुनने की छूट नहीं है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं अमुक मेरी माता होगी और अमुक मेरा पिता होगा, किंतु माता पिता को यह अधिकार है कि उनको बच्चा हो या ना हो। कानून की बात छोड़ दें तो आज विज्ञान ने इस बात की व्यवस्था कर दी है कि वो ये भी तय कर सकते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, कब हो, कितने अंतर से हो। प्राचीन समय में ये काम संयम से होता था। आज विज्ञान ने साधन जुटा दिए हैं और इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमने साधन तो अपना लिए, परंतु साधनों के कारण हमने संयम को तिलांजलि दे दी। तो चूंकि माता पिता को बच्चे चुनने का अधिकार है और यदि उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया कि एक संतान हमारे घर में जन्म लेगी, दंपति के यहाँ जन्म लेगी, तो उनका ये कर्तव्य है कि उसका उचित और आदर्श पालन पोषण करें। अब इस with these preliminary observations, now I come to the topic. देखिए, एक बात आपसे कहूं, हम कुछ गंभीर चर्चा भी करेंगे आज, पर शुरुआत हम जरा एक विनोद की हल्की फुल्की बात से करते हैं। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं जिसमें व्यंग भी है, विनोद भी है, और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपको इसमें आनंद आएगा। आपने कभी सोचा है कि माता पिता कितने प्रकार के होते हैं, या पेरेंटिंग कितने प्रकार की हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। पेरेंटिंग 4 प्रकार की होती है। पहले वर्ग में आते हैं आतंकी माता पिता, टेररिस्ट पेरेंट्स। ये वो माता पिता हैं जो ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि जो बच्चा भगवान ने उन्हें दिया है, उस बच्चे को भगवान ने कान इसलिए बनाए हैं कि उन्हें खींचा जाए, उनके गुलाबी नर्म गाल इसलिए हैं कि उन पर चपत लगाई जाए, और उनकी पीठ इसलिए है कि उसे ठोका जाए, पिटाई की जाए। ये होते हैं आतंकी माता पिता। बच्चों को दंडित करना वे अपना अधिकार मानते हैं। दूसरा वर्ग है अनुशासनवादी माता पिता। अनुशासनवादी माता पिता इतने कठोर तो नहीं होते, किंतु वे अपने बनाए हुए नियम अपने बच्चों पर थोपते रहते हैं। वो ये मानकर चलते हैं, उनकी अपना एक परिकल्पना होती है कि मेरा बच्चा तो ऐसा होना चाहिए। और 35 वर्ष का पिता 5 साल के बेटे या बेटी से अपेक्षा करता है कि वो उसी तरह बोले जैसे मैं बोलता हूं, वो सोफे पर उसी तरह उठे बैठे जैसे मैं उठता बैठता हूं, क्लास में फर्स्ट आए, स्पोर्ट्स में लीडर बने। सच पूछिए तो ये अनुशासनवादी माता पिता अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों के स्कूल में आमंत्रित हुए, व्हाट्सएप कार्यक्रम था, उनका प्रवचन होना था, गए। जैसी टैगोर जी का आदत थी कि उन्होंने खुले मैदान में बैठ गए कुर्सी लेकर, और लॉन में घास पर बच्चे बैठ गए। टैगोर ने विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका थी, प्रिंसिपाल, उनसे पूछा, क्या ये बच्चों का स्कूल है? बोले जी हाँ। बोले मैं तो देख रहा हूं इमली के पेड़ लगे हैं, इमली से लदे हुए हैं, आम के वृक्ष हैं जिस पर कच्चे आम लदे हुए हैं। यदि ये सचमुच बच्चों का स्कूल है तो इमली के पेड़ पर मुझे इमलियां नजर नहीं आती, आम के पेड़ पर मुझे कच्चे आम नजर नहीं आते, ये तो सब तोड़ करके बच्चे खा चुके होते हैं। इतना अनुशासन जिस विद्यालय में है कि वृक्ष पर फल लगे हुए हैं, बच्चे उन्हें तोड़ नहीं सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जहां बच्चों को बच्चों की तरह व्यवहार करने और खेल कूद की छूट नहीं है,
थोड़ी शैतानी करने की छूट नहीं है, मैं उसे बच्चों का स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप यही बात को अपने घर पर के विषय में सोचिए, जहां बच्चों को बच्चों की तरह व्यवहार करने की छूट नहीं है। वे अनुशासनवादी माता पिता हो सकते हैं, किंतु वे अपने बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। तीसरे वर्ग के माता पिता होते हैं अनुरागी। बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके साथ समय भी बिताना चाहते हैं। भोजन करने बैठते हैं तो माता भोजन परोसती है, पति और पुत्र को प्रेम से भोजन कराती है। एक बार ऐसा हुआ, एक बालक कहता था कि मैं तो अपने पिताजी के साथ भोजन करना चाहता हूँ, जिद करता था। और हर बार जब उसके पिता भोजन करने आते थे, वो जाकर उनके साथ भोजन करने बैठ जाया करता था। एक दिन बातचीत में पिता ने पुत्र से कुछ कह दिया। पुत्र को अच्छा नहीं लगा, अप्रसन्न हो गया। एक दिन उसने कह दिया कि मैं पिताजी के साथ भोजन नहीं करूंगा। जब पिता भोजन करने आए, वो अपने कमरे में जाकर के पढ़ने बैठ गया। पत्नी से पूछा, बेटा कहाँ है? बोले वो उसका मन अच्छा नहीं, कहता मैं पिताजी के साथ भोजन नहीं करूंगा, आपने कल उससे कुछ कह दिया। पिता बच्चे के कमरे में गए, बेटे से कहा भोजन करोगे? बेटा बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ भोजन नहीं करना। पिता बोले कोई बात नहीं, हर दिन तुम कहते थे कि मैं पिताजी के साथ भोजन करूंगा, मत करो। आज मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और आग्रह पूर्वक अपने पुत्र को लेकर आया और तब पिता और पुत्र ने साथ साथ भोजन किया। ये माता पिता होते हैं अनुरागी माता पिता। और चौथा वर्ग होता है अति उदार। अति उदार माता पिता। बच्चों को मनचाहा करने की छूट होती है। बच्चा जो खाना चाहे उसे खाना मिलता है, भले ही वो खाद्य हो या अखाद्य हो। बच्चा जो पहनना चाहे उसे पहनने की छूट है, भले ही इस प्रकार के वस्त्र पहनना उसके लिए उचित है या अनुचित है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ता है, बिना इस बात का विचार किए कि ये जो पढ़ने के लिए लेकर आता है उसके लिए पठनीय है या अपठनीय है। ये होते हैं उदार माता पिता। छोटे छोटे बच्चों को महंगे फोन, बाइक, गाड़ी। मेरे एक मित्र का बेटा है, विवाह हो चुका था। इधर मुझसे बोला अंकल मेरी बेटी हुई है। मुझे पता चला, मैंने उसको बधाई दी, बहुत बहुत बधाई। तो बोला अंकल 10 दिन बाद मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से घर लेकर के आऊंगा और मेरी बेटी BMW कार में आएगी। मैंने बुक करा दी है। मेरी बेटी, जन्मजात बेटी, हाल की जन्मी, जब अस्पताल से घर आएगी तो उसके लिए मैंने BMW कार खरीदी है, उसी में बैठ करके घर आएगी। ये होते हैं अति उदार माता पिता। अति उदार माता पिता के बच्चों को न सुनने की आदत नहीं होती। जो उन्होंने कहा वो होना चाहिए, और यदि उनको किसी ने न कह दिया तो वे विद्रोह कर देते हैं। ये होते हैं अति उदार माता पिता। तो आतंकवादी, अनुशासनवादी, अनुरागी और अति उदार, ये 4 प्रकार के माता पिता होते हैं। यदि मैं आपसे रूबरू होता, हम सब एक साथ बैठे होते हैं, तो मैं आपसे ये पूछता कि क्या आपके मन में कोई और वर्ग भी ध्यान आ रहा है कि इनके अतिरिक्त भी किसी प्रकार के पेरेंट हो सकते हैं? और मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे या क्या मुझसे पूछेंगे। एक रोचक बात बताऊं, एक बच्चे को बड़ा मिठाई खाने का शौक था, बहुत तरह की मिठाई खाना चाहता था, और उसकी पॉकेट मनी में उसके 50 रुपए थे। गांव का हलवाई था, बड़ा प्रसिद्ध हलवाई, उसका नाम था बुद्धू हलवाई के नाम से मशहूर था। गया बुद्धू हलवाई के यहाँ, बोला अंकल, बुद्धू अंकल, ये गुलाब जामुन क्या भाव दिए हैं? बोला 200 रुपए किलो। तो बोला अच्छा 1 किलो तौल दो। अच्छा बोले इमरती कैसी है? हलवाई ने कहा कि हमारे यहाँ हर मिठाई एक भाव है। अच्छा तो फिर ठीक है, इमरती 1 किलो, बर्फी 1 किलो, रसगुल्ले 1 किलो, सब उसने चारों 1-1 किलो तुलवा लिए।
फिर कहा अंकल बुद्धू अंकल इन चारों को मिला दो, तो उसे मिला दिया। बोले इनको अच्छी तरह मिला दो, मिला दिया। फिर बोला कि 50 रुपए देते हुए बोला अब इसमें से 250 ग्राम मुझे तोल दो। 4 तरह की मिठाइयां मिलाकर कहता है कि इनमें से 250 ग्राम मुझे तोल दो। कभी कभी मिक्सचर बहुत काम का होता है और अनेक प्रकार की मिठास उससे बुझ जाती है। एक 5 ही प्रकार के माता पिता और होते हैं, वो इन सब का मिक्सचर होते हैं। हर वर्ग से उन्होंने कुछ न कुछ लिया होता है। अति सर्वथा वर्जयेत, इसलिए किसी भी वर्ग की अति नहीं होना चाहिए। अपनी परिस्थितियों के अनुकूल प्रत्येक के गुण दोष पहचान करके हर एक के गुण लीजिए, दोष का परित्याग कर दीजिए और अपने लिए एक मॉडल बनाइए, और वो मॉडल आपको एक आदर्श माता आदर्श पिता बनाएगा आपको। साध्वी ऋतुम्बरा बहुत अच्छी बात कहती है बच्चों को अनुशासन रखने की। यदि बच्चों का स्वभाव होता है गलतियां करते हैं, साध्वी ऋतुम्बरा कहती हैं कि बच्चों को नियंत्रण में लेने की तीन यात्राएं होती हैं, 3 गति 3 पग। पहली बात, बच्चों को रोको, रोकने से नहीं माने तो बच्चों को टोको, और टोकने से भी नहीं माने तो फिर बच्चों को ठोको। रोको, टोको और फिर ठोको। इसमें 3 प्रकार के गुण उन्होंने रख लिए। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता, जैसा समयोचित हो। कोई रेडीमेड मॉडल पेरेंटिंग का नहीं हो सकता। प्रत्येक माता पिता को अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। अब हम जब आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हम इस पर विचार करें कि पेरेंटिंग का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए। बिकॉज इट इज द पर्पस दैट डिक्टेट्स द रूट, दैट डिक्टेट्स द मेथोडोलॉजी। सबसे पहली बात, हम थोड़ा विशद दृष्टिकोण से देखें। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक श्रेष्ठ नागरिक देना, ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। अपनी राष्ट्र का धर्म निभाना, अपनी मातृभूमि की सेवा करना और इसके लिए एक उत्तम नागरिक देना, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आज इस वेबिनार का वेन्यू पंजाब है। पंजाब में तो एक पद्धति रही है कि माता पिता के जितने बालक हुए उनमें से एक को गुरु जी का शिष्य बना दिया करते थे, उसे सिख कहते थे। एक बालक को सिख, तो देश की सेवा करने के लिए एक। दूसरी बात, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे का पालन पोषण इस प्रकार से करें कि उसका कद जिस दिन बढ़े, जिसकी कोई उसको कोई उपलब्धि हो, उसका कोई सम्मान हो, तो वह सम्मान और उपलब्धि उससे अधिक होनी चाहिए जितनी उसके माता पिता ने स्वयं अर्जित की है। अर्थात उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े, उनसे पीछे न रहे। ये प्रत्येक माता पिता दिल से चाहते हैं और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। दूसरी बात, जब भी जीवन में कोई सम्मान मिले, कोई उपलब्धि मिले, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, युवक हो जाए, प्रौढ़ हो जाए, जब भी उसे मिले तो सबसे पहले अपने माता पिता को स्मरण करके ये कहे कि मैं अपने माता और पिता को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार मेरा पालन पोषण किया, उसी के कारण आज ये उपलब्धि मुझे हुई और ये सम्मान मुझे मिला। संक्षेप में मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे का पालन पोषण इस प्रकार करें कि उसका जीवन सफल भी हो और सार्थक भी हो। Not only successful but meaningful. And if there is a dispute between being successful and meaningful, I would say the life of a child shall be meaningful
दैट शुड बी द ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ पेरेंटिंग। अब ये उद्देश्य पूरा कैसे हो? विद्वान कहते हैं कि पेरेंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वे प्रिंसिपल समय सापेक्ष होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु और विकास की अवस्था में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे माता पिता की भूमिका में परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब बालक शिशु होता है, पुत्र हो पुत्री हो, तो उसे स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता होती है। जब शिशु होता है, बाल्यकाल में, अर्थात जिस दिन बालक अपनी माता की गोद छोड़ करके अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, उसका बाल्यकाल प्रारंभ हो जाता है। उसे शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और माता पिता को चाहिए कि बालक के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बालक को भी इस प्रकार की प्रेरणा दें कि वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन के नियमों का पालन करे। जब बाल्यकाल से बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, ये सबसे नाजुक समय होता है। जब बालक से किशोर की आयु में बालक प्रवेश करता है तो वो एक दोराहे पर खड़ा होता है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, वो कहीं भी जा सकता है। एक रास्ता वो जो उचित है, एक रास्ता वो जो अनुचित है। इस समय उसको चारित्रिक दृढ़ता और संस्कार के सृजन की आवश्यकता होती है। यदि आपने अपने बालक को संस्कारित किया है और चारित्रिक दृढ़ता उसे दी है, तो इस दोहराए पर वो वही मार्ग चुनेगा जिस पर उसे जाना चाहिए, जो उसके लिए श्रेय है। और जब ये बालक किशोर होकर के युवावस्था में प्रवेश करता है, तो ये कहा जाता है, हमारे कम से कम हमारा हिंदू धर्म, हमारी हिंदू पद्धति ये कहती है कि जब बालक युवा होता है तो पुत्र पिता का मित्र होता है और पुत्री मां की सहेली होती है। नीति शास्त्र ये कहता है कि एक बार जब बालक या बालिका युवा हो जाए तो पिता को उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और मां को अपनी बेटी से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वो अपनी किसी सहेली के साथ करेगी, उतनी आत्मीयता के साथ, उतने ही खुलेपन के साथ। कोई आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, मुक्त आदान प्रदान। अब ये समय और आयु के साथ परिवर्तन है। मैंने जो आपको आपके सामने माता पिता के 4 वर्ग रखे और ये जो मैंने बातें अभी कही, ये कुछ सामान्य विचार हैं, जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको कुछ बातें वो कहना चाहता हूं जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, यहाँ जो सीखा, एक अभिभाषक के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में अनेक प्रकार के विवादों को मैंने सुना। मेरे बहुत मित्र हैं, उनके परिवारों में मेरा जाना आना रहता है। जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, मैं उससे कुछ बिंदु विचार, बुलेट पॉइंट्स, कोई क्रमबद्ध नहीं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसे मैं यूं कहूंगा कि मेरा जीवन, मैं तो कहूंगा कि मेरा जीवन एक बगीचा है और मेरे माता पिता ने मुझे इतना संस्कार और बुद्धि से अलंकृत किया कि जिसके कारण मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है। मैंने फूल भी चुने हैं, कांटे भी सहे हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि साल हर साल की तलाश के बाद जिंदगी के चमन से छांटे हैं और आपको चाहिए तो पेश करूं, मेरे दामन में चंद कांटे हैं। अनुभव कांटों की चुभन देते हैं, परंतु उनकी भी अपनी एक भूमिका होती है। मैं आपसे कहूं ये बात, और विशेषकर माता पिताओं में मैं माता से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बालक की सबसे पहली गुरु उसकी माता होती है। और स्कूल की शिक्षा तो तब प्रारंभ होगी जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, परंतु माता का गुरुत्व
बच्चा स्वीकार करने के लिए विवश है और बच्चे का ये विद्यालय या गुरुकुल उस दिन प्रारंभ हो जाता है जिस दिन बालक माता के गर्भ में आता है। हमारे यहाँ गर्भवती माता के लिए एक आचार संहिता है। गर्भवती माता जो पढ़ती है, जो सुनती है, जो खाती पीती है, जिस प्रकार की संगति में रहती है, उसका प्रभाव उस बालक पर आता है जो उसके गर्भ में है। इसलिए हिंदू संस्कृति में गर्भवती महिला के लिए बहुत कठोर आचार संहिता है और उसके पिता के लिए भी उसके पिता से अपेक्षा की जाती है कि यदि उसकी धर्मपत्नी गर्भवती है तो चर्चा में और आचरण में बहुत सतर्क रहे। दूसरी बात, माता की गोद सबसे पहला किंडरगार्टन होती है। बच्चा माता की गोद में लेटे लेटे कब सीखना शुरू कर देता है ये माता को पता भी नहीं चल पाता और बालक सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा शिशु हो, यदि उसे खिलौने दिए जाएं, पुस्तकें दी जाएं, चुनकर दी जाएं। बच्चे के लिए हर खिलौना काम का नहीं है। एक बार एक पिता मेले में गए और बच्चे को पिस्तौल दिला लाए, बंदूक, खिलौना बंदूक, टॉय गन दिला। बच्चा घर में आया, घर में आते उसको दादी दिखी। दादी को देखते बोला, दादी मैं बंदूक लेकर आया हूं, मैं आपको शूट कर दूंगा। जो बच्चा बाजार से बंदूक लेकर के आया है वो अपनी दादी से ये कह सकता है, भले बचपन है, भोलेपन में, दादी मैं आपको शूट कर दूंगा। ये इस मन में, उस बालक के मन में विचार इसलिए आया कि उसके पिता उसे मेले से बंदूक दिला करके लाए थे। बच्चों को एजुकेशनल टॉयज दीजिए, उन खिलौनों से बच्चों की प्रतिभा का विकास भी हो और बच्चों का मनोरंजन भी हो। उन्हें पढ़ने के लिए पंचतंत्र की कहानियां, ईसप की कथाएं, अकबर बीरबल की कहानियां, तेनालीराम के किस्से, और हम भूल जाते हैं विश्व में सबसे सस्ती पुस्तकें हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, जहां से कल्याण नाम की मासिक पत्रिका निकलती है। नाम मात्र कीमत पर 10-10, 5-5 रुपए में बच्चों की ऐसी कहानियों की पुस्तकें मिलती हैं। साहसी बालक, परोपकारी बालक, उत्साही बालक, माता पिता के आज्ञाकारी बालक, ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें लाइव स्टोरीज होती हैं, जिन्हें पढ़कर के बच्चों को सदाचार की प्रेरणा मिलेगी, उनकी प्रत्युत्पन्न मति जागृत होगी, उनकी क्षमता, समता और दृढ़ता बढ़ेगी। उन्हें चुनिंदा कहानी की पुस्तकें पढ़ने के लिए दीजिए। मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहता हूं कि पेरेंटिंग की कोई पुस्तक भी आपको मिल जाए ना, तो ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, सबसे पहली बात, हर उम्र के बच्चे को, चाहे वो शिशु है, चाहे बालक है, चाहे किशोर है, किशोरी है, उसे ये विश्वास दिलाइए कि ईश्वर है, ईश्वर एक वास्तविकता है, और उसे ईश्वर के प्रति आप उसको विश्वास दिलाएंगे तो 3 बातें होंगी। ईश्वर के प्रति उसका विश्वास और उसकी आस्था उसे भय, भ्रम और भटकाव से उसकी रक्षा करेगी। बच्चा कभी अकेला होता है, उसे डर लगता है, कहता मैं अकेला हूं, मुझे डर लग रहा है। उसे विश्वास होना चाहिए वो अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी उसे भ्रम होगा, डाउट, अब मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में भ्रम, समझ नहीं पा रहा है, वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ईश्वर उसका मार्गदर्शन करके उसका ही विवेक जागृत करेगा ताकि उसके भ्रम का निवारण हो सकेगा। और भटकाव, कई बार ऐसा होता है, देखिए अपराध और गलत काम सब अकेले में होते हैं। और क्यों होते हैं? कि कोई देख नहीं रहा, मैंने कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है।
जिस दिन बालक, किशोर, युवा या किसी उम्र का व्यक्ति हो, यदि उसे ये मालूम है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, वो उसे रोक देगा। कृष्ण बिहारी नूर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा, उसने कहा है कि मैं अंधेरे में रहूं या कि उजाले में रहूं, मैं अंधेरे में रहूं या कि उजाले में रहूं, ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है यारो। ऐसी अनुभूति होती है कि कोई मुझे देख रहा है। इसलिए जब कोई देखने वाला नहीं है, तब भी कोई ऐसा देखने वाला है जो उसे वो नहीं करने देगा जो उसे नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति पर ऋण है। 3 प्रकार की माताएं होती है प्रत्येक की। एक अपनी माता, दूसरी अपनी मातृभाषा, और तीसरा मातृभूमि। मां, मातृभाषा और मातृभूमि, इन तीनों की सेवा उसे करनी है, और ये सेवा करने के लिए सक्षम बनाना माता पिता का कर्तव्य है। एक बात आपसे कहूं, मेरे मन में कई बार घूमती रहती है ये बात, आज आपसे बांट लेता हूं। डॉक्टर नियति ने मुझे मौका दिया है तो मैं आपसे कह लूं। बहुत दिन चल पड़ा 2 या 3 बस, फिर चला 1 या 2 बस, ठीक है। परिवार नियोजन के दृष्टिकोण से नारा, इसका मैं विरोध नहीं करता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं हर माता पिता से, आपके घर में एक बेटा और एक बेटी जरूर होने चाहिए। और ये मैं क्यों कहता हूं, उसका कारण आपको बताता हूं। घर में भाई बहन होना चाहिए। भाई को पता होना चाहिए बहन क्या होती है, बहन को पता होना चाहिए भाई क्या होता है। और जिन घरों में ये नहीं होता, अधिकांश घरों में आज आप देखिए 2 बेटे हो गए, बस ठीक है, हमारा तो परिवार पूरा हो गया, बहन है ही नहीं। जब ये बालक घर के बाहर जाएगा, जब किसी लड़की को देखेगा, तो वो लड़की उसके नजर में सिर्फ एक लड़की है, क्योंकि बहन क्या होती है ये वो जानता ही नहीं है। इसी लड़की उसके लिए लड़की है। और इसी प्रकार जिस लड़की का कोई भाई नहीं है, वो जब घर के बाहर जाती है और किशोर अवस्था का कोई लड़का देखती है, तो लड़का उसके लिए सिर्फ लड़का होता है। ये परिकल्पना कि ये मेरा भाई भी हो सकता है, कि उसके मस्तिष्क में उपस्थित नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चों में भाई और बहन का पवित्र संबंध उनके शैशव में, बाल्यकाल में, उनके मस्तिष्क में बीजारोपित नहीं हुआ है, अंकुरित नहीं हुआ है। इसलिए आज बहुत से अपराध हो रहे हैं। इन अपराधों की रोकथाम उस दिन हो जाएगी जिस दिन प्रत्येक लड़का, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ जो सहपाठी लड़कियां होती थी वो हमारी बहन होती थी। लड़कियों के स्कूल में यदि कोई लड़का पढ़ता था तो उन लड़कियों की वो लड़का भाई होता था। आज तो एक साध्वी ऋतंबरा एक प्रसंग सुनाती है, जीवन प्रसंग, कि बोले मैं एक बार बड़े अच्छे परिवार में गई तो मेरे सामने उनका बच्चा स्कूल से लौट कर आया, 10 साल का बच्चा था। तो उसकी माँ ने बेटे से पूछा, 10 साल के बेटे से, क्यों बेटा अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं? 10 साल के बच्चे से माता पूछती है कि कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं। हमारी संस्कृति वो है कि भाई नहीं हो तो धर्म भाई मनाया जाता है, बहन नहीं हो तो धर्म बहन बनाई जाती है। हर राखी के त्योहार पर उस धर्म बहन से राखी बंधवाई जाती है। ये भाई बहन की परिकल्पना केवल उस परिवार में आ सकती है जिस परिवार में बेटा भी होता है और बेटी भी होती है। अपने बच्चों को आदर्श बने। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं बजाय सुनने के। बच्चों से संवाद करें, उनके साथ समय बिताएं। उनके बोलने से आपकी निकटता बढ़ेगी और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से आपके पास समृद्धि है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। परंतु आपके बच्चों को कभी भी आपकी संपन्नता का एहसास नहीं होना चाहिए। मेरे माता पिता के पास इतना है, ये बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए।
उन्हें सामान्य बच्चे की तरह जीने दीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं इसमें, इन बिंदुओं पर, और अभी अभी श्री नीरज मंत्री ने मुझे एक वीडियो भेजा कल, बहुत अच्छा लगा मुझे, 15 मिनट का वीडियो। उसमें एक महिला है जो पेरेंट्स का काउंसलिंग करती है, उसने बड़ी प्यारी बात कही और उसने एक ही बात पर जोर दिया। उसने कहा, आप बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? बच्चे का जन्मदिन की तैयारी 6-7 दिन पहले शुरू हो जाती है और बच्चा ये उम्मीद करता है कि मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट क्या क्या मिलने वाली है, कितनी महंगी गिफ्ट मिलने वाली है, कितनी नई चीजें गिफ्ट में आने वाली है। वो कहती है कि बच्चे के जन्मदिन को आप इस तरह न मनाएं। बच्चे को लेकर के जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उसको अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, an institution for physically challenged, a blind school, गरीब बस्ती, झोंपड़पट्टी, वहां लेकर के जाइए, उसके हाथ से उपहारों का वितरण कराइए। जिन बच्चों ने कभी चॉकलेट देखी नहीं है उनके लिए चॉकलेट बंटवाइए, मिठाई बंटवाइए, भूखे को भोजन कराइए, प्यासों को पानी पिलवाइए बच्चे से। वो बच्चा सीखेगा कि जीवन क्या है और ये उस दिन सीखेगा जिस दिन जन्मदिन। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मैडम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर अर्चना मंत्री की बेटी है, वो जर्नलिस्ट है। अब उसकी सारी मित्रों ने, माता पिता ने, सबने पूछा कि इस जन्मदिन पर तुम्हें क्या उपहार दें। उसे पशुओं से बहुत प्रेम है, पेट से, खासतौर से कैनाइंस, कुत्तों से उसे बड़ा प्रेम है। कभी कभी लोग हंसी उड़ाते हैं, उसकी चिंता नहीं करती। वो आएगी, घर आएगी तो घर आकर के सबसे पहला काम पास के बगीचे में जाती है कि वहां कुत्ते क्या कर रहे हैं, उनको प्रेम करने के लिए जाती है। वो कहती है कि मेरे जन्मदिन पर जो उपहार आप मुझे देना चाहते हैं उससे 5 संस्थाओं के नाम लिखे जो पशु और पक्षियों की सेवा करने में व्यस्त हैं। आप जो उपहार मुझे देना चाहते हैं वो राशि आप इस संस्था को प्रेषित कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत कीमती उपहार होगा। मेरे आंखों में तो आंसू आ गए जब मुझे ये जानकारी मिली कि वो टीनेजर बेटी ये कहती है कि मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार नहीं चाहिए, आप उन्हें दे दीजिए पशु पक्षी मूक जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमें बच्चों का जन्मदिन इस प्रकार मनाना चाहिए। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। और अब अंतिम बात, हम लोग जब छोटे थे तो बच्चों का कोई अलग कमरा नहीं होता था, हम सब बच्चे इकट्ठे रहते थे। मैं कहूँगा एक बात आपसे कि एक बात पर आप जरूर ध्यान दीजिए, ये देखिए कि आपके घर में विशेषकर बच्चों के कमरों में चित्र कौन से लगे हैं। मानदंड कसौटी, बच्चों के कमरे में वो चित्र होना चाहिए जिससे कोई चरित्र बोलता है, वो चित्र जिससे कोई चरित्र बोलता है। विवेकानंद का चित्र लगाइए, डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस का लगाइए, चिन्मयानंद स्वामी का लगाइए, भगवान का चित्र लगाइए, महापुरुष के चित्र लगाइए। उनका जीवन बोलता है, उनका चरित्र बोलता है। या कोई सीनरी लगाइए ताकि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत हो। मैंने कुछ परिवारों में ऐसे चित्र लगे देखे हैं जिन्हें बच्चे प्रतिदिन देखते हैं, मुझे भी देखने में कुछ संकोच होता है। वो चित्र बच्चों के कमरों में लगे होते हैं। ये बात छोटी है पर माता पिता को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आदरणीय माता पिताओं, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत शांति से, बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। मेरे कुछ स्ट्रे थॉट्स हैं, ये बिखरे विचार मैंने आपके सामने रखे, परंतु मुझे आपके प्रति मेरा विश्वास है कि मेरे इन बिखरे विचारों को आप सूत्रबद्ध करके इन पर कुछ चिंतन करेंगे और इस बात के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे कि हमारा कर्तव्य एक आदर्श बालक, एक आदर्श बालिका को जन्म देना है। माताओं से बालिका के बारे में एक बात इसलिए और कहता हूं, ये सब जानते हैं कि बेटी का विवाह होगा और ससुराल चली जाएगी। हर माता जानती है
माता को बालिका के विवाह के पूर्व इतना संस्कारित कर देना चाहिए। केवल बालिकाओं के संदर्भ में ये बात कही जाती है, जब माता अपनी बेटी को विवाह करती है, ससुराल जाती है, तो माता ये कहती है कि वो मेरे दिल के पास है और मेरे दिल से दूर भी। छोटी थी, विवाह नहीं हुआ, मेरे साथ रहती थी, विवाह हो गया, ससुराल रहती है। वो मेरे दिल के पास है, मेरे दिल से दूर भी। चिराग एक है लेकिन दो घरों में जलता है। बेटी एक ऐसा चिराग है जो दो घरों को रोशन करती है। बेटी जैसा ये सौभाग्य बेटों को नहीं मिलता, इसलिए हर घर में बेटी जरूर होना चाहिए। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटी सी 2-3 मिनट की बोध कथा के साथ। मुझे मालूम है थोड़ा मेरा समय बढ़ गया है, मैं नियति चिटकारा से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात का समापन करता हूं। देखिए, भगवान बुद्ध की एक कथा है। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, भगवान बुद्ध का नियम था कि प्रतिदिन संध्या काल अपने शिष्यों के साथ विचरण करने के लिए जाया करते थे, घूमने के लिए, इवनिंग वॉक कह लीजिए। एक दिन भ्रमण करते हुए उनके परम प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, प्रभु सत्संग किसे कहते हैं, ये समझाइए, सत्संग किसे कहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, इधर उधर देखा और आनंद से कहा, जाओ वो मिट्टी का ढेला देख रहे हो, उठा लाओ। आनंद गया, मिट्टी का ढेला उठा लाया। बुद्ध ने कहा, इसे सूंघो। आनंद ने उसे सूंघा, उसमें सुगंध थी, बहुत मीठी सुगंध थी। आनंद चकित हुआ, मिट्टी के ढेले में ये सुगंध। उसने प्रश्नात्मक दृष्टि से भगवान बुद्ध को देखा। भगवान बुद्ध ने कहा कि उधर ही फिर देखो, निकट जाकर देखो। आनंद जाकर देखा, उसी मिट्टी के ढेले के ठीक ऊपर एक गुलाब का पौधा लगा हुआ था। उस गुलाब के पौधे से पत्तियां झड़ती थीं, गुलाब की पंखुड़ियां उस मिट्टी के ढेले पर गिरती थी और गुलाब की पंखुड़ियों के संपर्क में आकर के उस मिट्टी के ढेले में गुलाब की खुशबू भर जाया करती थी। भगवान बुद्ध ने कहा, सत्संग इसी को कहते हैं और सत्संग की यही महिमा है। उस मिट्टी के ढेले में अपनी कोई सुवास नहीं है, किंतु वे गुलाब के पौधे के सत्संग में रहता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व, मिट्टी के ढेले का व्यक्तित्व गुलाब की सुगंधि से भर जाता है। मैं इस बोध कथा का थोड़ा रूपांतरण करते हुए आज पेरेंटिंग के संदर्भ में इस बात को कहना चाहता हूं। देखिए, परिवार एक गुलाब का पौधा है। जिस डाल पर गुलाब के फूल लगे हैं, ये गुलाब के फूल हमारे बच्चे हैं, हमारी बालक बालिकाएं गुलाब के फूल की तरह हैं। जिस डाल पर ये पुष्प लगे होते हैं, वो डाल होती है माता, और इस गुलाब का संरक्षण करने वाला पिता उस पौधे में लगे हुए कांटों की तरह है। आप कहेंगे, पिता को आप कांटा कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं, कभी आपने विचार किया कांटे की भूमिका क्या है? कांटे की भूमिका यह है कि यदि कोई उच्छृंखल व्यक्ति अनायास गुलाब के पौधे को तोड़ने की चेष्टा करता है तो कांटा उसे रोक देता है। और दूसरी बात, ये गुलाब के फूल कभी कभी ठंडी हवा जोर से बह रही है तो मस्ती में झूमने लगते हैं। उस समय कांटे उसको चेतावनी देते हैं कि इतना मत झूमो कि कांटों से तुम्हारी पंखुड़ियां छलनी हो जाएं। इसलिए अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में रहो। ये कांटे गुलाब के फूल को भी संदेश देते हैं। ये गुलाब के पौधे, यदि इनका माता पिता ने एक आदर्श माता पिता के रूप में पालन पोषण किया तो ये गुलाब के पौधों से, उस गुलाब के पौधे से पंखुड़ियां गिर करके मिट्टी के ढेले को सुगंधित करती थी, जिसे भगवान बुद्ध ने देखा। परंतु आप यदि आदर्श माता पिता हैं, पेरेंटिंग का आर्ट
यदि आप जानते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके बालकों का व्यक्तित्व, ये गुलाब के फूल जहां जाएंगे वहां इनके सद्गुणों की पंखुड़ियां भारत देश की मातृभूमि पर गिरेंगी, और जहां गिरेंगी उस भारत की भूमि को सुरभित करेंगी। आप आदर्श माता पिता के रूप में आदर्श मातृत्व और पितृत्व के सिद्धांतों को पालन करते हुए देश को एक आदर्श नागरिक दे रहे हैं। तभी इस देश का संवर्धन होगा और तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। और एक बात और, ईश्वर के प्रति आस्था की बात मैंने आपसे कही है कि आप बच्चों को ईश्वर के प्रति आस्था रखना सिखाइए, इसलिए कि ईश्वर की प्रति आस्था उनकी भय, भ्रम और भटकाव से उनकी रक्षा करेगी। समापन करते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यही ईश्वर के प्रति आस्था भक्ति का रूप ले लेगी और भक्ति का रूप लेकर के उन्हें मुक्ति के उस मार्ग पर ले जाएगी जिसे पाने के लिए मनुष्य जब से जन्म लिया है तब से आज तक भटक रहा है, भटकता रहेगा। और ईश्वर के प्रति आस्था उसे भक्त बनाकर मुक्ति के मार्ग पर भी ले जाएगी, रेनाइसेंस, मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः एक बार आभार ज्ञापित करता हूं। और आपने मुझे सुना, आपने यदि कुछ अच्छा लगा हो तो इसे न केवल ग्रहण करके मत छोड़िए, इस पर कुछ चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद जो आपका मन बोले उसे अपने परिवार में व्यवहार में लीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपका आभार ज्ञापित करता हूं। Wow, what an illuminating talk, sir. And I think you've summed it also very well. Now let's move on to the another very, very illuminating segment of the session, which is our question and answer round. And I think a lot of parents, and I see a lot of questions coming up. To begin with, I have a question from Dr. Madhu Chitkara, who is the Pro-Chancellor Chitkara University and also the chairperson of our school. So her question is that with outbreak of coronavirus, there has been a major shift in parenting scenario. So I would like to ask, how can school and parents co-parent the child during these tough times? How can they ensure a balanced well-being of the child, especially when he's away from the school and he's not meeting his peer group? I'm reminded of a very old prayer which says, "O God, grant me courage to change the things I can, to accept the things I cannot change, and the wisdom to know the difference. There are a few things where we can do little about it. But I may tell you, I know a good number of families who have no grievance about the Corona-19. They say that we are the beneficiary of the Corona. We got such golden time to spend with our children. And here we can make full use of the information technology. Several institutions, I'm told about your institution also, you are keeping in live touch with your students, with the children who come to school. And of course, in the physical presence, what the teacher can transmit to the children may not be possible that effectively. But 90% of it can be achieved by the use of modern means of communication also. Therefore, we should make a shift, devise such programs where whatever you want to deliver to your children, you can do it with the help of the information technology. Lovely. What an answer. So the next question is, how can we nurture our learners safely in today's digital era, an era of mistrust, disbelief, and dissatisfaction? What is this mistrust, disbelief, and dissatisfaction?
all the three are our own creation. Distrust arises because of the absence of trust. Disbelief because we don't believe each other. Dissatisfaction because we are not satisfied. It is very simple. These are all our own creation. If we create positivity, there shall be no room for negativity. ये नकारात्मक शक्तियां तभी प्रवेश पाती हैं जब सकारात्मक शक्तियों का अभाव होता है। यदि हमें विदित है कि कुछ नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक नेगेटिव पावर्स हमारे आसपास घूम रही हैं हमारे निकट आने के लिए, यदि हम इतनी पॉजिटिविटी को जनरेट करके अपने साथ रखें कि नेगेटिव पावर्स को घुसने का स्थान ही न मिले, तो इस नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। Wow. Well said, sir. Next in line is a question which is quite interesting. And it says that how much impact do you think it makes on a child if parents have good relationship between themselves? Between themselves, certainly. Yes. Certainly. This Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People. It's an international bestseller. Dale Carnegie ने लिखा है कि अपराधियों का जब मनोवैज्ञानिकों ने, सोशल साइंटिस्ट ने विश्लेषण किया, ये पाया गया कि प्रत्येक अपराधी वो व्यक्ति है, अधिकांश अपराधी, प्रत्येक तो नहीं कहूंगा, अपराधी वो व्यक्ति है, मेजर फैक्टर which contributes to a child become attracted towards crime, जिसका बचपन स्नेह और स्वस्थ वातावरण में नहीं बीता। जब माता पिता झगड़ते हैं, मैं जब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था और फैमिली कोर्ट के में विवाद मेरे सामने आया करते थे, पति पत्नी के विवाद में द पर्सन हु इज मोस्ट हार्ड हिट इज द चाइल्ड। उसकी जो क्षति होती है उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। और मैं उन सबको ये समझाता था, एक दूसरे के हित में नहीं, परंतु ये बेटा या बेटी जो तुम्हारा एक का नहीं दोनों का है, इसके हित में तो समझौता कर लो। और कई लोगों को ये बात समझ में आ जाती थी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जैसा मैंने अभी कहा कि बच्चे सुनने से कम और देखने से ज्यादा सीखते हैं। यदि माता एक दूसरे से संयमित व्यवहार नहीं करते, प्रेमपूर्ण आचरण नहीं करते, आदर्श आचरण नहीं करते, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर अवश्य आएगा। इसलिए जब एक बार once they have planned the parenthood, they must learn the lesson of parenting। और एक नियम उन्हें बना लेना चाहिए, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़े। Wow. Next question is again from Dr. Ashok K. Chatkara, Chancellor Chatkara University. And he wants to ask, what is the role of grandparents in parenting the child? देखिए फिर वही बात, I'll tell you from my own experience. I would say, I don't believe that a family consists of only father, mother and children. The grandparents are an indispensable part of a family, and that family is the luckiest which has the grandparents living with them. I know the families with 3 generations, 4 generations, and even the 5th generation is started. They are all living together. और कोरोना का समय उन परिवारों ने सबसे अच्छा बिताया है जिसमें दादा दादी अथवा नाना नानी पोते पोती एक साथ रह रहे हैं। उन परिवारों ने कोरोना का संकट अनुभव ही नहीं किया, इतना आनंद उनका समय व्यतीत हुआ है। एक बात सिर्फ, दादा दादी अनुभव का भंडार होते हैं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभवों का भंडार होते हैं। और वो बातों बातों में
अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपना अनुभव सौंप देते हैं, और इतना अनुभव, इतना ज्ञान और इतना प्रेम जो उनके माता पिता भी उन्हें नहीं दे सकते, उनके दादा दादी से उन्हें मिलता है। इसलिए मेरे विनम्र मत में दादा दादी परिवार का अनिवार्य अंग हैं, और बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि अपने माता पिता से अधिक अपने दादा दादी का सम्मान करें और उनके साथ समय बिताएं। Nice. So I'll take one quick question. This is by Roma JT, and the question is, how can we limit use of mobile and internet, especially in present situation of COVID? मैंने एक बात पहले भी कही है। पहली बात तो ये है, देखिए विज्ञान में, और ये जो विज्ञान और हमारा पुरातन विज्ञान, मैं पुरातन को विज्ञान कहते हैं, या यूं कहूंगा विज्ञान ही, हमारा अवर ओन एंशिएंट साइंस एंड द मॉडर्न साइंस, इन दोनों में एक बेसिक अंतर ये है कि हमारे पुरातन विज्ञान की कुछ सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, और किसी खोज को करने के पहले हमारे ऋषि और महर्षि अपने अंतर ज्ञान से ये सोच लिया करते थे कि ये खोज करना हमारे लिए उचित है या नहीं है। और आज की विज्ञान जो खोज कर रहा है, इनमें से अनेक खोज हमारे ऋषियों महर्षियों ने कर ली थी, पर उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने इसलिए कर दिया कि इस इन्वेंशन के द्वारा जितने लाभ हो सकते हैं उससे अधिक हानि होने की संभावना है, इसलिए हम इस इन्वेंशन को करेंगे ही नहीं, या कर लिया तो उसको छोड़ देंगे। अब ये आपका कहना बहुत सही है। पहली बात तो ये है कि अब बच्चों को, अब हर बच्चा अपनी उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। 3 साल का बच्चा आजकल डॉल से खेलने की बजाय मोबाइल से खेलना चाहता है। आपने किसी घर में चले जाइए, आप देख लीजिए, छोटे बच्चे ने भी यदि मोबाइल आपके हाथ में देखा तो लपक कर आता है और आपके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। ऐसा पता नहीं क्या उस बच्चे के मन में होता है, उसे मोबाइल चाहिए। तो पहली बात तो ये कि बच्चों को सतर्क कीजिए कि यद्यपि ये मोबाइल हम तुम्हें दे रहे हैं, ये लैपटॉप हम तुम्हें दे रहे हैं, पर इसका कितना उपयोग करना और नहीं करना, एक। दूसरी बात, टाइम टू टाइम माता पिता को बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए। और पिता तो ये काम कम करेंगे, पर माता कर सकती हैं। बेटे बेटी से, खासतौर से कम उम्र के से, विश्वास में लेकर के उनसे ये पूछना चाहिए कि बच्चा मोबाइल या लैपटॉप से क्या करता है। तीसरी बात, हर मोबाइल लैपटॉप में ये जानने के साधन हैं कि उसमें हिस्ट्री आती है उसमें कि बच्चे ने उस मोबाइल या लैपटॉप से क्या किया है। समय समय पर बच्चे के ज्ञान में लाए बिना इसकी जांच करते रहना चाहिए। और अंतिम बात, मैंने कुछ दिन पहले एक परिचर्चा का अवसर चितकारा यूनिवर्सिटी में मुझे दिया था, तो मैंने कहा था, ये बात अटपटी लगती है पर मैं उसको आज भी दोहराना चाहता हूँ। घर में एक नियम बनाइए, लैपटॉप और मोबाइल को बेडरूम में नहीं ले जाया जाएगा। सोने के लिए जाने से पहले लैपटॉप और मोबाइल कॉमन प्लेस पर चार्जिंग के लिए छोड़ दिए जाएंगे, सुबह उठ करके काम में लेंगे। और टीवी घर में एक होना चाहिए, बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, बच्चों के रूम में टीवी नहीं होना चाहिए। बच्चा टीवी पे कोई कार्यक्रम देखना चाहे, कॉमन रूम में बैठ करके देखे। बड़ी सीधी बात है, बच्चे के बेडरूम में टीवी क्यों चाहिए? क्या देखना चाहता है बच्चा उस टीवी पर, जो कि बच्चा सोचेगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या देखा। कॉमन रूम में बच्चा देखे। और फिर एक बात है, थोड़ी छूट दीजिए। बच्चा कार्टून नेटवर्क 2 घंटा देखता है, आपको अच्छा नहीं लगता, पर बच्चा कार्टून नेटवर्क देख रहा है, देखने दीजिए, कोई बात नहीं। पर हाँ, कार्टून नेटवर्क में वायलेंस वाले नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस पर जिस सीमा तक हम रोक लगा सकते हैं हमको लगाना चाहिए।
बाकी आज बिना लैपटॉप के गुजारा नहीं है, बिना मोबाइल के गुजारा नहीं है। ये तो अब देना पड़ेगा। इसके साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं उन्हें हमको झेलना पड़ेगा, पर जितनी रोक हम इस पे कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और बच्चों को समय रहते इन बातों का ज्ञान करा देना चाहिए कि इनका उतना उपयोग करें जो वांछनीय है, वो उपयोग न करें जो अवांछनीय है। Wow. Well, sir, we have reached the end of this wonderful webinar, and I'd like to take this opportunity to express my immense gratitude towards former Chief Justice of India, Ramesh Lahoti ji, our guest panelist. Your Lordship, your admirable knowledge, your wisdom truly permeated the session with positivity and fervor. Once again, a wholehearted thanks to you, sir, for joining us and making this day as happy as possible. You have certainly given us some remarkable takeaways, and I'm sure the audience will follow the path to similar virtues and beliefs. Everything in life does seem easier when you have the support of your parents. It is that warm embrace of your mother or encouraging pat on the back from your father that makes things much more beautiful and easy. Before we wrap up, this is the heartening poem that I would like to recite and dedicate to our incredible parents. Parents will be there. That's the title of the poem. When it feels like no one would understand, who was there to hold your hand? There are people whom you can't replace. They are the ones who gave you your face. They will love you through thick and thin. They show you the light from deep within. You see, my friend, there's no one who can love you more than your own parents, that's for sure. Always remember that this is true, that wherever you go, your parents will be there for you. Thank you so much. With that, we'd like to wholeheartedly thank all the endearing parents whose crucial support has been driving force behind the smooth functioning of the school, even in the middle of global pandemic. I'd like to further thank our wonderful students and supportive stakeholders for joining us today for the session and for being such a lovely audience. With great love and best wishes, everyone, a very happy Parents' Day to all of you. And I hope that you have a wonderful day ahead. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much for sharing so much with us. Thank you. Honored.